الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ صلاۃ والسلام۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر شوق و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عطیہ درود و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ کا احسان جس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں مسجد میں حاضر ہو کر اپنا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ ہم ایک آزاد ریاست، ایک ایسے ملک میں بستے ہیں جو ایک کلمے کی بنیاد پر، ایک مذہب کی بنیاد پر آزاد ہونے والا پہلا ملک تھا۔ اس روئے زمین پر پہلا ملک تھا جس کی آزادگی کا مقصد، جس کے انڈیپینڈنس کا مطلب فقط ایک مذہب تھا۔ انسان اور مسلمان جو اس خطہ برصغیر میں بستے تھے، ان کے نظریات میں اختلاف تھا، ان کی سوچوں میں، ان کے اعمال میں، ان کے رسم و رواج میں اختلاف تھا، وہ جداگانہ حیثیت رکھتے تھے۔ ان لوگوں نے اس آواز کو بلند کیا کہ ہم لوگوں کا جوڑ نہیں ہے، ہم جداگانہ ریاست کا مطالبہ کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ خوبصورت ملک پاکستان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود بخشا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ ہم محبوب بس بہرحال کرنا یہ ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی نعمت ملے تو اس کا خوب چرچا کرنا ہے، کوئی اللہ کی طرف سے انعام آ جائے اس کا چرچا کرنا ہے۔ آج ہمارے گھر میں اگر کوئی بچے کی ولادت ہو، خوشی کرتے ہیں، مٹھائی بانٹتے ہیں۔ ہمارے گھر میں کوئی خوشی آ جائے، کوئی اچھا تہوار آ جائے، ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، شیرنی تقسیم کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا، کہ اللہ نے ہمیں یہ انعام عطا فرمایا۔ تو رب کا احسان ہے جس نے ہمیں یہ خوبصورت ملک عطا فرمایا، یہ خوبصورت سرزمین عطا فرمائی، ایسا خطہ عطا فرمایا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے لیے ہموار کر دیا۔ یاد رکھیے، مسلمانوں اور کفار میں ابتدائے دن سے ہمیشہ جدائی کی رہی ہے، ان کے رسم و رواج کبھی ایک جیسے نہیں ہوئے۔ آپ کسی بات کو اگر غور کریں، جب ہجرت کر کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں آئے تو مدینہ منورہ میں پہنچے تو وہاں پر یہود بستے تھے، یہودی تھے، تو ان کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ سر پر دستار پہنتے تھے لیکن اس کے نیچے ٹوپی نہیں پہنا کرتے تھے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے مخالفت کرو، عمل میں ان سے مخالفت کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ ناک میں اگر آپ کی مکھی بیٹھ گئی ہم ناک ہی کاٹ دیں، ہم بلکہ اس مکھی کو اڑا دیں۔ ہاں، وہ لوگ بغیر ٹوپی کے پہنتے ہیں، ہم بھی سر پہ دستار سجائیں گے لیکن ٹوپی کے ساتھ فرق کرو، اپنے سر پر ٹوپی رکھو پھر دستار سجاؤ۔ 10 محرم الحرام کو یہودی روزہ رکھتے ہیں، ایسا کرو ہم بھی 10 محرم کو رکھیں گے لیکن ایک دن بڑھا لیں گے، یا 9-10 کا رکھیں گے یا 10-11 کا رکھیں گے۔ مخالفت کہا
फिर फरमाया कि यहूद का तरीका था तो अपनी मूछों को बढ़ा लिया करते थे और दाढ़ियां साफ कर दिया करते थे। तो आका ने कहा मुखालिफत करो, अपने चेहरे पर दाढ़ी सजाओ और अपनी मूछों को पस्त करो। हाँ, इस्लाम ने किसी गैर मुस्लिम कौम से मुशाबहत से दूरी इख्तियार करने का हुक्म दिया, ताकि इंसान का वजूद इस चीज का इजहार करे कि ये जो शख्स है ये मुसलमान है। इस्लाम इंसान को मुमताज बनाता है, दूसरों से जुदागाना एक हैसियत बख्शता है। इब्तिदा से प्यारे आका ने हमें दीगर मज़ाहिब से जुदा होने की एक हिकमत अमली को पेश किया। इसी बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने हम इस उम्मत मोहम्मदी पर एहसान फरमाया। इसी नजरिए को लेकर, ये नजरिया फकत ये 14 अगस्त 1947 के पहले ये पेश नहीं हुआ, बल्कि अरसा दराज से ये तरीका चला आ रहा है कि इस्लाम एक अपने उरूज और तरीके के साथ चलता आया है और अपने तरीके कार रस्म व रिवाजों से चलता आया है, लेकिन कुफार इससे जुदा थे। तो इसी बुनियाद पर इस मुल्क को एक जुदागाना हैसियत दी गई और ये वो पहला मुल्क था जो किसी मजहब के नाम पर जुदा हुआ। कि पाकिस्तान एक आज़ाद रियासत है, इसलिए हरगिज ये बात नहीं है कि पाकिस्तान को इसलिए आज़ाद कर दिया गया कि पाकिस्तान की सड़कें अच्छी बन जाएं। ये तो हम वहां रहकर भी बना सकते थे। इसलिए नहीं आज़ाद किया गया कि पाकिस्तान के अंदर कोई अच्छी गवर्नमेंट को लाया जाए। पाकिस्तान को इसलिए नहीं आज़ाद किया गया कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जाएं और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लगाई जाएं। मजहब के नाम पर इस मुल्क को आज़ाद किया गया। ये तो हम उस मुल्क में रहकर भी ये काम कर सकते थे, बल्कि अगर और किया जाए तो बज़ाहिर वो हमसे कुछ ज्यादा तरक्की कर चुके हैं। लेकिन इस मुल्क को जुदा करने का मकसद ये था कि हम आज़ादी के साथ इस्लाम के ऊपर अमल पैरा हो सके, हम अपनी मसाजिद को आबाद कर सके, हम दीन इस्लाम का प्रचार कर सके। आज भी आप यूरोप में चले जाएं, किसी भी दुनिया की रियासत में चले जाएं, वहां लोग आपको नमाज पढ़ने से नहीं रोकेंगे, लोग आपको वहां से ज़कात अदा करने से नहीं रोकेंगे। मस्जिदें वहां भी बन रही हैं, लोग कुरान वहां भी पढ़ रहे हैं। अगर फर्क ये है, अगर वो किसी चीज से रोकते हैं तो वो ये है कि उनकी अदालतों में निज़ाम मुस्तफ़ा नहीं आना चाहिए, उनके कानून में निज़ाम मुस्तफ़ा नहीं आना चाहिए। इबादत से किसी को मसला नहीं है, निज़ाम से जरूर मसला है। इस मुल्क को बनाने का सबसे बड़ा मकसद ये था, इसके अंदर निज़ाम मेरे मुस्तफ़ा का कायम किया जाए, निज़ाम ऐसा कायम किया जाए जो रसूलुल्लाह ने अपने असहाब की तरबियत की थी। और हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने के बावजूद रोजाना रात को अपने मुंह पर चादर ओढ़कर गली मोहल्लों में निकला करते थे। एक बूढ़ी औरत भूख से बिलबिला रही थी, जब उससे पूछा तो वो कहने लगी मैं उम्र से नाराज हूँ, उसको फिक्र ही नहीं। तो फारूक आज़म, वो जुमला काबिले गोल है, फारूक आज़म ने कहा अरे बूढ़ी खातून, उमर को क्या पता कि छोटे से घर के अंदर क्या मामला है। तो उस बूढ़ी औरत ने जवाब दिया अगर उमर इतनी बड़ी रियासत को संभाल नहीं सकता तो हुक्मरान क्यों बन गया है। ये उसका जवाब था जिसने फारूक आज़म को लर्जा तारी कर दिया। तो इस इस्लाम के नाम पर इस वतन को आज़ाद किया गया ताकि इसके अंदर आज़ादी के साथ हम अल्लाह और उसके रसूल का नाम ले सके। इस वतन को हरगिज़ इस मकसद, आज हम 14 अगस्त मनाते हैं, आज़ादी का दिन मनाते हैं, कैसे आजकल वो अल्लाह पनाह दे वो बाजे बजाने वाली कौम और मोटरसाइकिलों पे सलंसर उतार कर रोडों पर शोर गुल करना, ना ये तरबियत। इस्लाम के नाम पर अगर मुल्क आज़ाद हुआ तो जब इस आज़ादी का वक्त आएगा तो क्या हम इस्लाम को तर्क कर देंगे, इस्लाम के कवानीन को छोड़ देंगे? रसूलुल्लाह ने फरमाया मैं इस दुनिया में आया इसलिए, मुझे इसलिए मबूस किया गया ताकि मैं इन आलात मौसीकी को तोड़ दूं, जिन मौसीकी के आलात को रसूलुल्लाह तोड़ने के लिए आए हैं। जब हमें इतनी बड़ी नेमत मिली, मोहब्बत का इजहार तो ये था कि जब 14 अगस्त का दिन आए मैं और आप कुरान की तिलावत करें, फिर 14 अगस्त को 14 नफल पढ़ के रब के आगे दुआ करें, मौला तेरा शुक्र है कि हमें तूने आज़ाद रियासत अता फरमाई। आज उन मुल्कों और कौमों का हाल देखो जो किसी के गैर के नीचे मकबूल हुई हैं। अल्लाह ने हम पर एहसान किया और हमें ये आज़ाद रियासत अता फरमाई, तो इसका मकसद यही था। मैं तो कहता हूँ अल्लाह ने कुरान मजीद में भी हमारे मुल्क का तज़किरा करता है। जी हाँ, बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ, अल्लाह ने इस मुल्क की आज़ादी का तो अल्लाह ने कुरान में भी जिक्र किया कि अल्लाह ने जब जिक्र किया ना कि मैंने तुम पर इनाम किया, मैंने भैंस के पेट के अंदर, एक गाय के पेट के अंदर 2 नापाकियां
خون اور غلاظت گندگی پخانے کے درمیان سے پاکیزہ نہر یعنی دودھ کو جاری کیا جو تمہیں نفع دیتا ہے، جو تمہیں فائدہ دیتا ہے۔ اگر ہم ملک کا حال دیکھیں یہ بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ناپاکیاں، ایک ان انگریزوں کی ناپاکی تھی اور ایک ہندوؤں کی ناپاکی تھی، اس سے ایک پاکستان کا خوبصورت نام جاری کیا جس کے اندر ہم اسلام کا نام لینے والے بن گئے۔ یہ اسلام ہے جس کو اللہ نے نافذ کیا۔ چودھری رحمت علی کے سامنے جب یہ تجویز رکھی گئی نا کہ ہم ایک ایسا ملک بنائیں گے جو اسلام کے نام پر ہوگا، اس کا کوئی نام تجویز کر دیا جائے، چودھری رحمت علی نے کہا اس ملک کا نام ہونا چاہیے پاک سرزمین، ایسی جگہ کہ جو پاک ہو، جہاں پر ہم ہر چپے چپے پہ اللہ کا سجدہ کر سکیں، اللہ کے حضور سجدہ ریزیاں کر سکیں۔ تو اس وجہ سے پاک کا مطلب پاکیزہ، استان کہا جاتا ہے کسی مقام کو، جگہ کو۔ تو اس ملک کو بنایا ہی پاکیزگی کے نام پر گیا تھا، لیکن میں نے اور اپنے آپ نے کردار کے ساتھ، اپنی زندگی کے ساتھ اس کو آلودہ کر دیا، اپنے اعمال کے ساتھ آلودہ کر دیا گیا۔ سود کا نظام رائج ہو گیا، شراب خانے عام ہوتے جا رہے ہیں، زناکاری کے اڈے عام ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ رب کی نعمت کا چرچا نہیں ہے۔ تو رب نے فرمایا سورہ دعا میں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب اللہ کی نعمت آ جائے نا تو اس کا چرچا کرنا ہے۔ سورہ دعا کا اگر پورا آپ پس منظر دیکھیں تو حال یہ تھا کہ سورہ دعا کی آپ تفسیر پڑھ کر دیکھیں، مسلمانوں پر ایسا حال ہوا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ عرصے کے لیے وحی کا نزول رک گیا۔ توجہ میری جانب رکھیے گا، کچھ عرصے کے لیے وحی نہیں آئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوڑا دل رنجیدہ ہوا، تو نعوذ باللہ کفار نے اعتراض کیا، اے محمد لگتا ہے تمہارا رب تم سے ناراض ہو گیا، نعوذ باللہ تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ دیا، ناپسند جان لیا ہے، اس لیے تم پر وحی نہیں اتار رہا۔ تو اس وقت اللہ نے ان آیات کا نزول کیا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ رب نے ان آیات کا نزول کیا اور کفار کو جواب دیا۔ کمال انداز ہے، اگر میں کوئی بات کروں، مجھ پر کوئی اعتراض ہو، میں اس کا جواب دوں گا، میرے خاندان والے جواب دیں گے، میرے عزیز و اقارب، میرے دوست جواب دیں گے، لیکن اعتراض کفار رسول اللہ کی ذات پر کر رہے ہیں، اللہ قرآن کی آیات اتار کر جواب دے رہا ہے۔ ارے بدبختو، تم یہ کہتے ہو کہ ہم نے پیارے نبی کو چھوڑ دیا، اپنے محبوب کو چھوڑ دیا، نا وَالضُّحَىٰ، مجھے چڑھتے ہوئے سورج کی قسم، مجھے چاشت کی قسم، میں وہ رب ہوں جو سورج کو چڑھاتا ہوں، جو دن کو لاتا ہوں، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور مجھے رات کی گھناوٹ کی قسم، جب رات گھنی ہو جائے میں تو رات کو لانے والا رب ہوں۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، نہ ہی آپ کو ناپسند کیا ہے۔ یہ بدبخت جھوٹ بولتے ہیں۔ رب کا حال یہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ، رب تو وہ ہے جس نے آپ کے ہر آنے والے لمحے کو پچھلے لمحے سے بہترین بنا دیا ہے۔ اور پھر آخر میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے محبوب ہم نے آپ پر انعام و اکرام کیے، کرنا یہ ہے کہ جب تم پر رب انعام کرے تو تم نے اس رب کی نعمتوں کا چرچا کرنا ہے۔ اس کا چرچے کا طریقہ کیا ہے، اس کا انداز کیا ہے، یہ ہمیں رسول اللہ کی زندگی بتاتی ہے۔ پیارے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الوطن، کہ وطن کی محبت کیا ہے، من الایمان، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ آج اگر ہم مکہ اور مدینہ سے محبت کرتے ہیں، ان پاک سرزمینوں کے بعد اگر دل میں کسی زمین کی محبت ہو تو اس پاک مٹی کی محبت ہو۔ اس وطن کی آزادی میں آج میں اور آپ مزے سے پکی پکائی کھیر ہماری تھالی میں آ گئی، ہم سے تو کھائی بھی نہیں جا رہی۔ اللہ ان لوگوں کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے جن لوگوں نے اپنی گردنوں کو کٹا کر اس وطن کو آزاد کیا، اور وہ لوگ جب اپنی گردنوں کو کٹا کر، اپنے کنبے کو کٹا کر اس مٹی پر قدم رکھتے تھے تو اقبال کا شعر پڑھتے تھے کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ اپنی قوموں کو ایک اشفاق، ایک رائٹر ہے، انہوں نے ایک خوبصورت کتاب لکھی نظریہ پاکستان، اس کے اندر تخلیق پاکستان کے بارے میں ایک واقعہ لکھا۔ انہوں نے ایک بزرگ سے کے زبانی ایک واقعہ سنا اور اس کے اندر لکھا کہ کہا کہ وہ بابا جی کہتے ہیں کہ ہوا یوں کہ ہم اس واگا بارڈر والی طرف سے پاکستان میں 1947 میں دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی، کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ایک جگہ سے موو کر کے، ہجرت کر کے
किसी दूसरी जगह पर आए, रुए जमीन पर इससे बड़ी हिजरत कभी नहीं हुई। इतनी करोड़ों की तादाद में अब लाखों लाख लोग आ रहे हैं, इस तरफ आ रहे हैं। तो एक बुजुर्ग कहते हैं हम भी दौड़ रहे हैं, सिख हाथ में तलवार लिए इन मुसलमानों को काटते चले जा रहे हैं। कोई भी ऐसा कुआं बाकी नहीं था जिसके अंदर कोई गुंजाइश हो, जिसके अंदर कोई लाश फेंकी जा सकती हो। नहरों के ऊपर सरों का एक सामान उमड़ आया था, इस कदर लोग जुल्म का निशाना बन गए। तो वो कहते हैं हम दौड़ रहे थे, हमारे पीछे भी सिख तलवार लेकर दौड़ रहे थे। मैंने देखा कि सामने एक दरिया सतलज के किनारे एक वो खुला पानी का दरिया है, तो मैं भी कूद जाऊं किसी दरख्त के सहारे, किसी टहनी के सहारे, हो सकता है मैं पार चढ़ जाऊं, नहीं तो इसी पानी में डूबकर मर जाऊंगा, लेकिन इन बदबख्तों के हाथों मरने से तो बच जाऊंगा। ये सोच लेकर जब मैं उसको कूदा तो मैंने देखा बहुत लोग हैं, बहुत लोग, एक तादाद है, सरों का समंदर है, इतने लोग मौजूद हैं। मेरे दिल में खुशी आई, चलो इतने लोग मौजूद हैं, कोई सहारा बन जाएगा। लेकिन जब होता खाने के बाद सर बाहर निकला तो वो जिंदा नहीं बल्कि लाशें थी जो उस पानी के ऊपर तैर रही थी। ये हाल मुसलमानों का किया गया। इतनी बड़ी ट्रेन वो वहां से चलकर जब पाकिस्तान लाहौर पहुंची ना, सिवाय चंद लोगों के सबको मार कर फेंक दिया गया था। इस कुर्बानी के बाद आज हम लोग इसको आसान समझते हैं, आजादी को, इस मुल्क को मजाक समझते हैं, लेकिन कुर्बानियां तो असल ये थी। इन लोगों ने अपनी गर्दनों को कटाया, नाउजुबिल्लाह उन बदबख्तों ने औरतों को पकड़कर जरगमाल बनाया, उनकी इज्जतों को लूटा, उनके हाथों से बच्चे खींचकर आसमान में बुलंद करते, अपनी तलवार की नोक को सामने रखते, वो तीर उनके पेट से गुजर जाता, उनका पेट फट जाया करता था, हड्डियां चूर चूर हो जाया करती थी, लेकिन माएं भी सब्र करके आगे बढ़ जाया करती थी, उस तक का नाम नहीं लिया करती थी। यह भी हाल आया इस मुल्क पर। इस मेहनत के बाद रब ताला ने इस उम्मत पर एहसान किया, ये आजाद हमें रियासत अता फरमाई। मैंने पहले भी आपको अर्ज किया कि अगर मकसद ये होता कि अच्छी सड़कें बन जाएं, अच्छे कॉलेज बन जाएं, यूनिवर्सिटियां, ये तरक्की का जरिया जरूर है, फकत तरक्की की बुनियाद पर अगर मुल्क आजाद किया जाता तो शायद ये काम वहां पर भी रहकर किए जा सकते थे। इस मुल्क को आजाद करने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि हम आसानी के साथ अपने रब का नाम यहाँ पर ले सकें, मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निजाम यहाँ पर कायम कर सके, इसका मकसद ये था। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी मिसाल के बाद हजरत सिद्दीक़ अकबर खलीफा मुकर्रर हुए। फिर 30 साल तक खिलाफत राशिदा का दौर रहा, जिसमें तकरीबन 6 माह का अरसा जो हजरत इमाम हसन ने गुजारा वो भी शामिल किया जाए तो ये 30 साल का अरसा जिसका रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया था 30 साल खिलाफत राशिदा रहेगी, फिर मलूकियत का दौर आएगा। फिर मलूकियत का दौर हुआ, बनु उमैया खलीफा बनी, उसके बाद मलूकियत का दौर हुआ, बादशाह बनु उमैया के पास आई, फिर बनु अब्बासिया, और ये सिलसिला चलता चलता फिर जब हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज तक ये बात पहुंची, आप इस्लाम के खलीफा मुकर्रर हुए, इस्लाम के सरबराह मुकर्रर हुए, तो आपने जब हलफ बर्दारी उठाई, आप मस्जिद के अंदर बुलंद हुए, आपने हलफ बर्दारी उठाई कि अपने रब को हाजिर नाजिर जानकर इस्लाम के निफाज को आम करूंगा, इस जिस्म में जब तक जान है रसूलुल्लाह के दीन पर कायम रहकर अपनी रियासत को आम करूंगा। और बहुत सारे आपकी गुफ्तगू का खुतबा मिलता है, तो आप जब निकले तो आपके सामने सैकड़ों बगियां, घोड़े और खूबसूरत सवारियां मुज़य्यन खड़ी थी, तो आपने कहा ये किसके वास्ते हैं? कहा आप अमीरुल मोमिनीन, आप मुसलमानों के सरबराह और बादशाह बने हैं, ये कामयाबियां और तरक्कियां आपके लिए हैं, कहा इनको दूर कर दो। फकत एक घोड़े पर सवार होकर अपने घर पलटे तो लोगों की चीखें बुलंद हुई और लोग एक कहने पर मजबूर हो गए, आज इस दुनिया पर आधा इस्लाम नाफिज हो चुका। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने जिस वक्त हलफ उठाया और वो मस्जिद से निकले, अल्लाह ने आधे इस्लाम को नाफिज कर दिया था और सारी जिंदगी मेहनत और मुशक्कत की। हाल ये हो चुका था कि आप 8 सूबों पर गवर्नर थे जो कई मुल्कों पर मुहित थी, आपके खित्ते के लोग अपने कंधे पर ज़कात को उठाकर फिरते थे और ये ऐलान करते थे कोई ज़कात लेने वाला है। पूरे 8 सूबों में कोई ज़कात लेने वाला नहीं मिलता था। इस कदर इस्लाम को नाफिज किया कि सब साहिब माल और साहिब निसाब हो चुके थे, इस कदर इस्लाम को नाफिज कर दिया। तो इस्लाम का निफाज करना ये इस्लाम के अव्वलीन तरजीहात में से एक तरजीह थी। जैसे ही हजरत फारूक आजम की जिंदगी पढ़कर देखे, कमो पेश 10 साल से कोई जायद अरसा आपने मुसलमानों पर हुकूमत फरमाई,
आपके लिबास का हाल ये होता कि आपके लिबास पर पेवल लगे होते, सफीर आपसे मिलने आते, आपसे सवाल करते, लेकिन वो आपको पहचान न सकते तो ये कौन है, ये अमीरुल मोमिनीन है या एक सादा रू आदमी है। इस सादगी ने उस मुल्क की तरक्की के अंदर साथ दिया। मुल्क की तरक्की फकत ये नहीं है कि मैं अपना घर संवार लूं, अपने बच्चों को आला तालीम दे दूं, बल्कि आज अगर हम बाजार में निकले, छोटे छोटे बच्चे काम काज लगने करने को मिलेंगे, छोटे छोटे बच्चे बुनैने और पता नहीं क्या क्या चीजें उठाकर बाजारों में आपका दामन पकड़ पकड़ के खींचते हैं, ये मुझसे खरीद लो, ये मुझसे खरीद लो। मकसद क्या है कि हमने अपनी यूथ को, जो मुस्तकबिल है नौजवान कौम, उसको हमने पसे पुश डाल दिया, जिसका नतीजा ये निकला हमने अपने आप को दीन इस्लाम की तालीमात से दूर कर दिया। अगर दुनिया सीखनी है तो दुनिया उतनी सीखे जितना इसके अंदर रहना है, आखिरत उतनी सीखे जितना आखिरत के अंदर रहना है। हम गौर करें, बड़ी खूबसूरत मिसाल उलमा ने बयान फरमाई है कि जब पानी के ऊपर कश्ती चल रही हो ना, तो कश्ती जितनी देर पानी के ऊपर रहती है वो पार चढ़ जाएगी, वो सलामत रहेगी। हाँ, अगर पानी कश्ती के अंदर चला गया तो कश्ती डूब जाएगी। ये दुनिया की मिसाल ऐसी है, जब तक हम इस दुनिया के ऊपर रहेंगे, दुनिया के अंदर चलते रहेंगे, तो ये दुनिया मामलात ठीक चलते रहेंगे, लेकिन जब हमारे अंदर दुनिया आ गई तो हम भी दुनिया के अंदर गर्क हो जाएंगे। इस दुनिया की मोहब्बत सारे फितने और फसाद की जड़ है। तो ये दुनिया की मोहब्बत ही हमें हर अच्छे काम से रोकती है, हर मफाद के काम से रोकती है। हम अपने हाथों से अपने मुल्क को आलूदा कर देते हैं, गंदगी फैलाकर, अपने किरदार की गंदगी फैलाकर। यह तरक्की हरगिज नहीं है कि नाउजुबिल्ला हमारे फिल्म, ड्रामे और गाने की इंडस्ट्री तरक्की करेंगी तो हमारा मुल्क तरक्की कर जाएगा। ना ना, तरक्की ये नहीं है। जब हया का पास आम होगा उस वक्त हमारा मुल्क तरक्की करेगा, उस वक्त हमारे मुल्क में तरक्की और बुलंदी होगी। ये हमारे मुल्क का हाल, अल्लाह इस पर रहम फरमाए। तो अल्लाह तबारक व तआला का इनाम था, एहसान था कि जिसने हमें इतना खूबसूरत रियासत और मुल्क और ये वतन अता फरमाया, जिसके अंदर आज हम आजाद ख्याली के साथ अपने रब की इबादत को गामजन कर रहे हैं। और ये जो कुफार सोच बनाकर बैठे हुए हैं कि नाउजुबिल्ला हम इस पर काबिज हो जाएंगे, जब 1947 में इस मुल्क को आजाद किया गया तो उस वक्त उनकी सोच और नजरिया यही था, 2, 4, 6, 8, 10 साल तक ये मुल्क चलाने की कोशिश करेंगे, जब इनसे नहीं चल पाएगा ये हमारी झोली में वापस फेंक देंगे और हाथ उठा देंगे। ये मेरे रब का एहसान है, आज 76 बरस बीत गए हैं, लेकिन हर बंदा आया, उसने हर तरह की हरबा आजमाई की कोशिश की, हर तरह की लूट पीट की कोशिश की, खाने की कोशिश की, लेकिन मेरे रब का एहसान है, जू का तो इस मुल्क का निजाम चल रहा है, जू का तो इसका सिलसिला चल रहा है। तो अर्ज कर रहा था, तरक्की ये है कि ना सिर्फ हम अपने घर को संवारें, अपने पड़ोसी को भी संवारें। किसी आज अगर मेरा बच्चा, मेरा भाई आला तालीम याफ्ता बन चुका है, अगर वो आला स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, तो मैं ठान लूं किसी पड़ोसी, किसी गरीब के बच्चे को भी तालीम याफ्ता बनाऊंगा, उसको भी दुनिया और दीन की तालीम सिखाऊंगा, समझाऊंगा। दूसरों के बच्चों से मोहब्बत रसूलुल्लाह ने सिखाई। ईद का दिन है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी को जा रहे हैं, कम पेश 10,000 सहाबा मस्जिद नबी में मौजूद रसूल खुदा का इंतजार कर रहे हैं कि अल्लाह के नबी आएंगे, ईद का खुतबा इरशाद फरमाएंगे और फिर हम ईद की नमाज अदा करेंगे। इंतजार हो रहा है अल्लाह के नबी का। प्यारे आका घोड़े पर सवार हैं, हजरत हसन और हुसैन भी प्यारे आका के हमरा हैं। जाते जाते देखा एक छोटा सा बच्चा, कम सिन बच्चा है, नाबालिग बच्चा है, वो रो रहा है। घोड़ा रोका, सवारी रोक कर उस बच्चे के करीब होकर पूछने लगे, बच्चे क्यों रोते हो? वो रोकर कहने लगा, मैं यतीम हूं, मेरा वालिद फौत हो चुका है, मेरा कोई सहारा नहीं है, काश मेरा भी कोई बाप होता, मुझे नया लिबास आज के दिन लेकर देखता। उसने जब हजरत हसन और हुसैन को देखा, उन्होंने सुथरा लिबास पहना है, उसकी आंख में आंसू आ गए। इस्लाम तो ये है, इस्लाम इस चीज का पैगाम देता है कि यतीम के सामने अपने बच्चों के साथ ज्यादा मोहब्बत न करो कि उसके दिल में कोई रंज ना आए। किसी बेवा के सामने अपनी बीवी के साथ मोहब्बत वाले अल्फाज मत बोलो। किसी गरीब के सामने अपने माल के दर्शन न करवाओ कि हो सकता है उसके दिल में कजी आ जाए। किसी गरीब के बच्चे के सामने अपने घर के अच्छे अच्छे खानों के जिक्र न करो, कहीं उसके दिल में ऐसा रंज ना आ जाए। हत्ता कि एक किताब में मैंने ये भी पढ़ा है कि उसके अंदर आदाब सूक बाजार के अदब में यह भी लिखा है कि वो फल मत खरीदना जो बिल्कुल सामने आवेजा हो, और वजह यह है कि उसके अंदर गरीबों की नजरें होती हैं, गरीब उसको देखकर गुजर जाता है हसरत से, काश मेरे पास भी पैसा होता तो मैं इसको खरीद कर खाता।
تو ये हाल है। तो अब इस्लाम हमें ये तरबियत देता है कि उन लोगों के सामने अपने माल की नुमाइश न करें। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये हाल देखा तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को थामा और अपने घर ले गए और जाकर कहने लगे, फातिमा कोई सुथरा लिबास है? आयशा को घर में अच्छा लिबास है? तो आप फरमाने लगी, नहीं अच्छा तो नहीं था, ये कोई थोड़ा सुथरा लिबास था, मैंने हसन हुसैन को पहना दिया। कहा ऐसा करो, जो पहले का लिबास था वही दोबारा हसन हुसैन को पहना दो और ये सुथरा लिबास इस बच्चे को पहनाओ। और उस बच्चे को पास करके कहने लगे, ए बच्चे तू इस चीज को पसंद करता है कि आज के बाद तू आयशा को अपनी माँ कहे, हसन हुसैन को अपना भाई कहे और रसूल खुदा को अपना वालिद कहे? वो बच्चा रसूलुल्लाह के दामन को थाम कर कहने लगा, अरे इससे बढ़कर खुशबख्ती और क्या हो सकती है कि मैं रसूलुल्लाह के दामन से इस तरह वाबस्ता हो जाऊं। तो आका ने अपने बच्चों का लिबास उतार कर उसको देकर बताया कि कौम की तरबियत ऐसे करनी है कि अपने पेट को काटना पड़ जाए तो काट दो, लेकिन अपने कौम के बच्चों को मजबूत करो कि कल ये इस्लाम के प्रचार करने में हमारे मुआविन मददगार साबित होंगे। तो हाल हमारी रियासत और मुल्क का यही है, जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको आज़ादी के साथ अपने रब और अपने रब के हबीब का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाई है। ये वो रियासत है जिसको कलमे की बुनियाद पर आज़ाद किया गया। हम ये नारे तो मारते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कानून रियासत क्या होगा, मुहम्मद रसूलुल्लाह। काश हम अमली तौर पर भी इसके जामे को पहन लें और इस मुल्क के अंदर इस्लाम के निफाज को आम कर दें। मैंने अर्ज किया कि इस मुल्क के अंदर अगर नमाज है, रोजा है, ज़कात है, तो दीगर ममालिक में भी ये सिलसिला कुछ ना कुछ जारी है। गैर मुस्लिम रियासतों में भी आप चले जाएं, मसाजिद आपको वहां भी मिल जाएंगे, नमाजी आपको वहां भी मिल जाएंगे। लेकिन अफसोस तो ये है, हम अपनी अदालतों पर गौर करके देखें, क्या ये वही अदालतें हैं जो रसूलुल्लाह ने कायम फरमाई थी? यहूदी आकर रसूलुल्लाह पर एतराज करे तो तब भी मुकदमा दर्ज हो जाता था रसूलुल्लाह की अदालत में। हमारी रसूलुल्लाह के साथ मोहब्बत का मेयार मुख्तलिफ है, जुदा है। हम जब मस्जिद में बैठकर दुरूद पाक पढ़ रहे हो तो ये मोहब्बत का एक आला मकाम होता है, ये होना भी चाहिए। लेकिन हाल तो ये है, जब अदालत के अंदर फैसला सुनाया जा रहा हो, अगरचे मैं गलत हूं, लेकिन दिल में यही ख्वाहिश होती है कि मेरे हक में, मैं बड़े दिल पर पत्थर रखकर कहता हूं, हमारे दारुल इफ्ता के अंदर एक वकील साहब आए कुछ शरई मसला पूछने के लिए, उन्होंने 18 सूरतें बताई, वो सब की सब नाजायज सूरतें थी जो इस्लाम के उसूलों के खिलाफ थी। मालूम है ये कातिल है, इसने कत्ल किया, फिर भी उसका मुकदमा लड़ रहे होते हैं, नहीं इसने कत्ल नहीं दिया, ये दलाइल दे रहे होते हैं। जब इस्लाम का हाल ये हो जाएगा तो हम किस तरह अमन की तरफ अपना मुंह करके देखेंगे? मैं किबला अलाउद्दीन सिद्दीकी साहब रहमतुल्लाह अलैह, नियारियां शरीफ आपका दरबार है, आप ये फरमाया करते थे, वो जुमला आपका बहुत याद आता है और कीमती जुमला है। आप ये फरमाया करते थे, इस वक्त को गनीमत जान लो, कुछ अगर इस्लाम बाकी है। आप अपने अवाइल की बात कर रहे थे, जब इस मुल्क को आजाद किया गया, इस मुल्क की जवानी थी, इस मुल्क का लड़कपन था, तो फरमाया कि ये वक्त अपने जहन में बिठा लो, आने वाला वक्त इससे भी बदतर आने वाला है। आज वो दौर आ चुका है, आज ऐसा सख्त वक्त आ चुका है जो पिछले से बदतर होता चला जा रहा है। आज के दौर में अगर कोई ईमान सलामत लेकर इस दुनिया से चला जाए, यही बड़े कमाल की बात है। आज अगर हम तकवे की वो आला मकामात को मत देखें, फकत ईमान की सलामती लेकर इस दुनिया से जाने वाले बन जाएं, तो ये भी बहुत बड़ी कामयाबी है। तो ये 14 अगस्त हरगिज ऐसे न मनाएं। हमारे यहाँ तो रवाज ही उल्टा हो गया, हम अपने मोटरसाइकिलों के सिलेंसर उतार कर कूदते हैं, वो बाजे, अल्लाह उसको गर्क करे जिसने इस चीज की इजाद की। दीगर लोगों की दिल में तकलीफ, ये ख्याल नहीं करते कि घर में मरीज सोया हुआ है, कोई बीमार सोया हुआ है, अस्पतालों के बाहर शोर मचाते, चीखें मचाते जा रहे होते हैं। ये इस्लाम की तरबियत नहीं है। उस शख्स के पास कुरान पढ़ने से मना किया गया है, उस शख्स के पास तिलावत कुरान करने से मना किया गया जो बीमार लेटा हुआ हो। मना किया गया उसके पास कुरान मजीद की तिलावत ना करो, कि वो इस चीज सुनने का अहल नहीं है, वो कराहेगा, उसके कान में आवाज जाएगी, तकलीफ का सामान हो सकती है। लेकिन हम शोर गुल करके लोगों के अमन को बर्बाद करके मुल्क का नाम ले, हरगिज ये नहीं। इस्लाम तो ये है, जब 14 अगस्त का दिन आए, हम सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद कुरान की तिलावत करें, इशराक व चाश के नफल पढ़ने के बाद 14 अगस्त की निस्बत से 14 नफल पढ़ें और अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, मौला तेरा शुक्र है तूने ये रियासत अता फरमाई। ना जाने आज हम किस यहूद और नसारा और हिंदुओं के नौकर बन के उनके जानवरों को साफ कर रहे होते। ये तो अल्लाह का एहसान है, उन लोगों की मेहनत है
کہ जिन लोगों ने इस मुल्क का ख्वाब देखा और इस मुल्क को तामीर करके हमारे सामने रखा। 47 में जब ये मुल्क बना तो इस मुल्क के अंदर कोई दस्तूर और कानून नहीं था, कोई दफात नहीं थी जिनको देखकर मुल्क का निजाम चला जाए। मोहम्मद अली जिन्ना ने कराची के अंदर ये चादरों और टीन डब्बों का एक दफ्तर बना के अंदर चंद लोगों को दीगर मुल्कों से किराए के तौर पर, इजारे के तौर पर ला कर रखा और उनके साथ मिलकर 1 साल के अंदर पूरे कौम का दस्तूर तैयार कर दिया, आइन तैयार कर दिया, जिसकी बुनियाद पर इस सारे मुल्क को चलाया जा रहा है और सारी रियासत को तरतीब दिया जा रहा है। तो आज मैं और आप अज़म करें, अपने मुल्क को गंदगी से बचाएं। आज हम ये कहते हैं हमारा घर साफ हो, लेकिन अपने घर का गंद सारा एक शापर में डालकर अपने घर से बाहर गली में फेंक देते हैं। रोड पर चलते हुए अपने मुंह से निकला हुआ गंद उसी जगह पर फेंक देते हैं, ख्याल नहीं करते। हाँ, अब सवाल मेरे पे ये भी आएगा, सवाल जहन में ये भी आता है, यार मेरे एक शापर उठा लेने से क्या हो जाएगा? तो मैं आपको बता दूं, कौमें किरदार से संवरती हैं, मुआशरे फर्ज से बनते हैं और अफराद ही उसकी तरतीब का सबब बनते हैं। अगर इस पूरे हाल के अंदर अंधेरा हो जाए, मैं भी कहूँ अंधेरा है, आप भी कहें अंधेरा है, अंधेरा है, कभी भी रोशनी नहीं होगी। रोशनी उस वक्त होगी कि मैं अपने अपने हिस्से की एक एक लाइट जला लूं, मैं अपने हिस्से की लाइट जला लूं, आप अपने हिस्से की रोशनी कर लें। चिराग जलते जलते सारे कमरे के अंदर रोशनी हो जाएगी, कतरे कतरे से दरिया बन जाएगा। हम तरतीब दें और अपने आप को इस जाविये के मुताबिक लाएं कि प्यारे आका का फरमान है कि वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। हम इसको अपना ईमान समझते हुए इस चीज की आरज़ुएं और दुआएं करें, इल्तिजाएं करें कि ऐ अल्लाह हमारे इस मुल्क को इस्तेकाम अता फरमा। कोई उमर बिन अब्दुल अजीज के किरदार वाला हुक्मरान अता फरमा, कोई फारूक आजम के किरदार वाला हुक्मरान अता फरमा। ये हुक्मरान हमें कम मिलेगा। हजरत उमर फारूक आजम फरमाया करते थे कि लौला अलीजुन लहाला का उमर, अगर मेरा वजीर, मेरा साथी, मेरा दोस्त, मेरा मुशीर अली ना होता तो उमर हलाक हो जाता। तो पता लगा इस्लाम के कायम का एक बहुत बड़ा क़याम का एक बहुत बड़ा सबब यह है कि अच्छे मुशीर का होना, अच्छे साथी का होना, अच्छा मशवरा देने वाले का होना। मैं और आप मुशीर हैं, कल हमसे कोई वोट मांगे, कोई सियासत से हटकर गुफ्तगू करता हूँ, ये जो हमारे मुल्क में तरीका राइज है ये एक अपने तौर पर है, लेकिन इस्लाम का तरीका इससे जुदा था। जो अमीर को सिलेक्ट किया जाता था, तो जब हम किसी को चुने तो मेरी आपसे नाकिस अर्ज है, इस चीज को सोचें कि कल क़यामत वाले दिन रब हमसे सवाल जरूर करेगा, मैंने तुम्हें हक दिया था मशवरा देने का, ये तुम्हारा मशवरा होता है, यार मेरे ख्याल में इस बंदे को हमारा सरबराह बना दिया जाए, ये इस्लाम को नाफिज करेगा। तो कल क़यामत वाले दिन हम इस चीज के जवाबदेह जरूर होंगे। एक बार सोच के इस अमल को जरूर कीजिएगा कि मैं जिसको चुन रहा हूँ खानदानी तकाजों की वजह से या मालो दौलत की हिर्स की वजह से या किसी दुनिया की मफाद की वजह से, या ये सोच रहा हूँ कि ये हमारे मुल्क को कौम की तरक्की करेगा। अगर आप इस सोच पे करेंगे कि ये मुल्क को कौम की तरक्की करेगा, फिर वो जाने, उसका किरदार जाने, वो जैसा भी अमल करे, इन जैसे 1000 भी और आ जाएं तो इस मुल्क का उखाड़ नहीं सकते। जिस रब ने आज तक इस मुल्क की हिफाजत की है, वो इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक इस मुल्क की हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह हमें इस मुल्क के साथ हरदम वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फस्ल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल न हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।